البرک کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرک کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اس کو دیکھا تو مسکرا دی، پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے 3-3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگ کے کپڑے جھنڈیوں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ پھڑپھڑاتے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہر سوار کے کندھوں میں سے ایک کمان آویزاں تھی۔ اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندھی تھی۔ اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی، ہوائیں جیسے سر فخر سے اونچے ہو گئے ہیں۔ سواروں کی شان نرالی تھی۔ گھوڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھیں۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہان کے لگتے تھے۔ البرک نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرک نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرک کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرک کے سینے میں لگا۔ اس بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرک مسکرایا، منہ سے کچھ نہ کہا۔ شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان میں تیر اندازوں اور تیز زنوں کے دستے تھے۔ ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتا تھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر تندرستی اور توانائی کی رونق تھی اور وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ ہر منجنیق دستے کے پیچھے ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیقوں سے پھینکی جاتی تھی۔ جہاں یہ برتن گرتا وہ کئی ٹکڑے ٹوٹ کر سیال مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا۔ ان پر آتشیں تیر چلائے جاتے تو سیال مادے شعلہ بن جاتا تھا۔ سلطان ایوبی کی قیادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور آگے نکل آئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی راستے میں سے واپس آ گیا۔ اس کے گھوڑے کے آگے علمبرداروں کے گھوڑے، دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان نے گھوڑا روک لیا، کود کر اترا اور تماشائیوں کو ہوا میں لہرا لہرا کر سلام کرتا شامیانے کے نیچے چلا گیا اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سوار اور پیادہ دستے دور آ گئے جا کر ٹیلوں کے عقب میں چلے گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ ایک گھوڑا سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی۔ اونٹ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر گھوڑ سوار نے گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باگیں چھوڑ دیں۔ وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا، وہاں سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا اور وہاں سے زمین پر کود گیا۔ چند قدم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ بھاگا، پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی پیٹھ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خادم الدین البرک دائیں کو ذرا سا جھکا اور اس کا منہ لڑکی کے سر کے درمیان 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ البرک مسکرایا۔ لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے یہ دونوں کو دیکھا۔ اس کے بوڑھے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے ہانڈیوں کی طرح کے وہ مٹی کے برتن جو گھوڑا گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اوپر کو جاتے، آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً 100 گز لمبا اور اسی قدر چوڑائی میں بکھر گیا تھا۔ ایک ٹیلے پر سے 6 تیر انداز نمودار ہوئے۔ انہوں نے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گڑ گئے۔ فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا شعلہ بن گئی جو گھوڑے کی پینڈ تک بلند اور 100 گز تک پھیلا ہوا تھا۔
एक तरफ से 4 घोड़सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार भी कम न की, चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नज़र आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़े से रेत पर गिर गए और थोड़ी दूर लड़कनियाँ खाते गए। इनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबरक इस शोरगुल और सवालों के कमालात से नज़रें फेरते हुए लड़की को देख रहा था। लड़की इसकी तरफ देख रही और ज़रा मुस्कुरा कर बूढ़े को देखने लगती। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की इसे जाता देख रही थी। अलबरक को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। इसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने कहा, ये मेरा खामद है। खामद? अलबरक ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? इसने मुझे ख़रीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है? अलबरक ने पूछा। नाराज़ होकर चला गया है, लड़की ने उसे जवाब दिया। उसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? अलबरक ने रोमानी लहजे में पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात ना दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान करतब दिखा रहे थे और हरबो ज़रब के मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे से पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फ़ौज देखी थी जो ख़जाने के लिए सफ़ेद हाथी बनी हुई थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। इसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते थे। इनके साथ अगर फ़ौज का दस्ता हो तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर ले जाते थे। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊँट घोड़ा देखते तो ज़बरदस्ती ले जाते थे। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फ़ौज रियाया पर जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है, लेकिन सुल्तान की फ़ौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे, बाकी फ़ौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाम तमाशाइयों में फैला दिया गया था ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल कर इनमें तो ये तासुर पैदा करें कि फ़ौजी इनके भाई हैं और इन्हीं में से हैं। बदतमीज़ी या बद इखलाकी करने वाले फ़ौजी के लिए बड़ी सख्त सज़ा मुकर्रर की गई थी। खादमुद्दीन अलबरक, जो सुल्तान अयूबी की जंगी मुशावरती महकमे का सरबराह और राजदारां था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोर गुल से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो गया था। लड़की एक जादू बनकर इसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी। इसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। इसे लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई। अलबरक ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो ख़रीदी हुई लौंडी है और इस बूढ़े ने इसे कैद में रखा हुआ है। वो इस पर हर वक्त नज़र रखता है। लड़की ने यह भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अलबरक ने उसे अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज फ़ौजों नौजवान की तरह उसने मुलाकात की वो जगह बतानी शुरू की जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम ज़माना का कोई खंडर था। अलबरक ने लड़की से ये वादा भी किया कि वो इसे बूढ़े से आज़ाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबरक घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर इस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला, इधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। काहिरा पुरसकूत तारी था। फौजी मेला ख़त्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आर्जी कबा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मज़ाफ़ाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फ़ौज में भर्ती हो गए थे और मज़ीद भर्तियों की तवक्को थी। अलबरक शहर से निकल गया और उसने उस खंडर का रुख किया जहां लड़की को आना था। सहराई गीदड़ों के सिवा ज़मीन और आसमान गहरी नींद सो गए थे। लड़की ने अलबरक से कहा था कि वो बूढ़े की कैदी है और उस पर हर वक्त नज़र रखता है। फिर भी अलबरक इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की ज़रूर आएगी। मुमकिन ख़तरों से निमटने के लिए इसके पास एक खंजर था। औरत ऐसा जादू है कि जिस पर तारी हो जाए वो किसी की परवाह नहीं किया करता। अक्ल व दानिश इसका साथ छोड़ जाते हैं। अलबरक पुख्ता उम्र का आदमी था, मगर वो नादान नौजवान बन गया था। इसे अंधेरे में खंडर के करीब एक तारीक साया सर से पाँव तक लिबावे में लिपटा हुआ नज़र आया और खंडर के खड़े सियाह भूत में जज़ब कर गायब हो गया। वो तेज़ तेज़ चलता खंडर में पहुंच गया। गिरी हुई दीवार के शिगार से वो अंदर आ गया। आगे अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी ज़ोर से कोई बहुत बड़ा परिंदा फड़फड़ाया। अलबरक ने हवा के तेज़ झोंकों
को महसूस किया और अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। इसके साथ इसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो जान गया कि ये बड़े चमगादड़ हैं जिनके पंजे इसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पाँव पर सिरकता कमरे से निकल गया। कमरा उड़ते चमगादड़ों से भर गया था। आगे सहन था जिसके इर्द गिर्द गोल बरामदा था। अलबरक ने यह भी न सोचा कि ये एक खरीदी हुई कैदी लड़की जिस पर हर वक्त नज़र रखी जाती है इस हैबत खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में किसी के कदमों की दबी दबी आवाज़ ने इसे बता दिया कि यहाँ कोई मौजूद है। इसने कमर से खंजर निकाल लिया था। इसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाज़ें डरावनी थीं। अलबरक ने आहिस्ता से पुकारा, आसिफा। लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया था और मेले में ये भी बता दिया था कि वो किस तरह फ़रोख्त हुई है। आप आ गए। इसे आसिफा की आवाज़ सुनाई दी। वो बरामदे में दौड़ती आई और अलबरक के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातर जान को ख़तरे में डाल कर आई हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद सफूफ पिला कर आई हूँ। वो जाग ना उठे। क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? अलबरक ने पूछा। मैंने कभी कत्ल नहीं किया, आसिफा ने कहा। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि इस तरह किसी मर्द से मिलने इस डरावने खंडर में आऊँगी। अलबरक ने इसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक इनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में अलबरक गुजर कर आया था इसमें 2 शमें मशलें निकलीं। ये लकड़ियों के सिरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लपेट कर बनाई गई थी। उनके शोले खासी बड़े थे। अलबरक ने आसिफा को अपने पीछे कर लिया। इसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरूहें थीं या लड़की का ताक़ुब में इसका खामद आ गया था? अलबरक अभी सोच रहा था कि एक आवाज़ गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशलें करीब आईं तो उनके नाचते शोलों में अलबरक और आसिफा को 4 आदमी नज़र आए। एक के हाथ में बरशी और 3 के पास तलवारें थीं। उन्होंने मशलें ज़मीन पर गाड़ी। खंडर का सहन रोशन हो गया। चारों आदमी अलबरक के गिर्द भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसिफा इसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज़ आई, मिल गए, जिंदा नहीं छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खामद की आवाज़ थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।